हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम जेई 2023 का केमिस्ट्री पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। द परसेप्शन दैट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग सिंस yesterday about the paper of JEE 2023 advanced is it is moderate, it is simple, it is imbalanced. But let me tell you what me and Shivanand sir has found out after solving both the papers. The paper is beautiful. The only word I can use for the paper is beautiful, perfect. What better it can be? Everything is in the syllabus. As far as organic, if I can say, plus inorganic, everything is from the NCRT. You don't have to frame the questions by moving outside the syllabus. That is the beauty of J advanced paper. Everything is from NCRT. You just had to understand the book, you just had to go through the book as perfectly as you can, and you can definitely break the chemistry advanced paper. Yeah, by the first look बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत सिंपल है, मॉडरेट है. आई डोंट नो, आई इन ऑल थ्रू माई करियर आई हैव हर्ड दीज लाइन्स. फर्स्ट टाइम देखने पर लोगों को यही लगता है कि पेपर बहुत सिंपल है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तब पता चलता है कि जो लग रहा था वो है नहीं, है ना. तो ये चीज़ सिंपल, आई डोंट नो, आई कंसिडर सिंपल only when you can score 100% in anything. Otherwise it is neither simple nor moderate, it is just perfect. A perfect blend of scoring, tough, moderate, a perfect blend of all these three, right? So it's a very beautiful paper. Let's discuss it, let's go through it, and let me share each and every point related to it, from where you can read this, from where you have got this, and for all those future aspirants, how to approach these papers when you are seeing or when you are watching this video in later stages of your preparation. You should know how to approach a JEE advanced paper. A very important point: read the questions, each and every line, read the options very carefully. Always give appropriate time to the chemistry paper, because if for paper like this जो आया है, आपने एक ढंग से सॉल्व करके एक प्रॉपर राइट टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली वही चीज़ जो आपको सिंपल लग रही थी वो आपको डुबोने के लिए काफ़ी होगी. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Paper 1 Chemistry, Section 1. There are 3 questions and one or more than one correct. So let us start with our first question. This question is based on metallurgy, and the correct statement related to processes involved in the extraction of metal is the first option is roasting of malachite produce cuprite. So the first thing is malachite is basic cupric carbonate, CuOH whole twice dot CuCO3 in solid state. ये जो बेसिक क्यूप्रिक कार्बोनेट है, ये कॉपर का जो कोरोजन होता है उसकी वजह से भी ये कंपाउंड फॉर्म होता है. और बेसिकली जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स हैं उनका हम कैल्सिनेशन करते हैं. वी डोंट डू रोस्टिंग. रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड्स की होती है. तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में इट शुड बी कैल्सिनेशन. ये कंपाउंड बेसिक क्यूप्रिक कार्बोनेट जब हम हीट करेंगे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड विल डिकम्पोज टू फॉर्म cupric oxide, carbon dioxide and water vapor. So this is copper in +2 oxidation state. Cuprite में Cu2 है, copper +1 oxidation state में है, and because of that A option is a wrong option. Moving to the B option. B option में आते हैं. Calcination of calamine produces zincite. So when we are talking about calamine, calamine is ZnCO3 and zincite is ZnO. तो हमें पता है कि ये जिंक कार्बोनेट है, एंड कैल्सिनेशन ऑफ दिस जिंक कार्बोनेट is done on heating zinc carbonate below the melting point. It will form zinc oxide and carbon dioxide. So again carbonate का calcination कर रहे हैं.
रोस्टिंग हम सल्फाइड्स की करते हैं और कैल्सिनेशन जो है हम वो कार्बोनेट्स का करते हैं. सो कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइज्ड ओर्स. Calcination is heating of concentrated ore in absence of air or limited supply of air below the melting point. So from here we are getting that the B option is correct. C option पे आते हैं. Copper pyrite is heated with silica in reverberatory furnace to remove iron. तो ये जो कॉपर पाइराइट है इसका दूसरा नाम है चैल्कोपाइराइट और इसका फॉर्मूला है chalcopyrite is CuFeS2. Basically it is a mixture of three compounds Cu2s, FeS and FeS2. एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इनमें ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. हियर कॉपर इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. iron this and iron this is present in +2 oxidation state. This sulfur is present in -2 and this sulfur is present in -1 oxidation state. So if we combine these, then we'll get the simplest formula as CuFeS2. It is not a compound, it is a mixture of compounds. The concentration of this ore is done by roasting, क्योंकि ये सल्फाइड ore है तो जब हम रोस्टिंग करेंगे so CuFeS2 will react with oxygen to form Cu2s, FeS and SO2. ये जो पहला पार्ट है रिएक्शन का, इसमें जो आयरन पाइराइट के फॉर्म में FeS2 के फॉर्म में इट इज कन्वर्टेड इनटू FeS, राइट. सो सल्फर हियर is in -1. This sulfur is from -1 is going to -2 and some sulfur is converted into sulfur dioxide. तो ये मेजर रिएक्शन है. Since the affinity of iron towards oxygen is more than sulfur, so this FeS will further combine with oxygen to form FeO and sulfur dioxide. तो ये दोनों मेजर रिएक्शन है. अब यहाँ पे चैल्कोपाइराइट में आयरन जो है वो इम्प्योरिटी है, तो जो भी आयरन है वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में है. दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड. तो ये बेसिक ऑक्साइड जो है वो SiO2 एसिडिक ऑक्साइड से कंबाइन होके स्लैग फॉर्म करता है. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी, iron has more affinity towards oxygen than copper. Therefore after roasting, copper exists as Cu2s, but most of the iron is converted into FeO, and FeO is impurity. It is gang plus flux will form slag, right? So this is used for concentration of the ore. So C option seems to be correct. अभी तक हमें पता चला है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, B option correct है and C option is also correct. Moving to the D option, impure silver is treated with aqueous potassium cyanide in presence of oxygen followed by reduction with zinc metal. तो यहाँ पे नेटिव सिल्वर में जो इम्प्योरिटी है उस इम्प्योरिटी से सेपरेट करने के लिए हम सिल्वर को इसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं. दिस इज नोन एज लीचिंग. सो लीचिंग में क्या है कि दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच नेटिव सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. हियर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन फ्रॉम 0 इज गोइंग टू -2, तो इसका एक्स फैक्टर 4 होगा. सिल्वर फ्रॉम 0 इज मूविंग टू +1, द एक्स फैक्टर ऑफ दिस विल बी 1, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्स फैक्टर वी कैन बैलेंस द रिएक्शन. यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिल्वर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट कैन बी फर्दर रिड्यूस बाई जिंक. तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मोर एक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग द लेस एक्टिव मेटल. तो यहाँ पे सिल्वर विल convert into metallic form. So this is concentration of silver from impurity, right? So D option seems to be the correct option. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होना चाहिए B, C and D. तो ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है और हर साल JEE एडवांस में मेटलर्जी का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और इस क्वेश्चन में मेटलर्जी का काफ़ी पार्ट कवर हो गया है. So the answer for question number 1 is B, C, D. So this is the question number 2. अब यहाँ देखिए इस पूरे क्वेश्चन में, लेट मी एनलार्ज इट अ लिटिल. I think all of you can see that this entire question has lot of concepts based on Grignard reagent, which is very important. ये first वाला cyanide plus Grignard, ये तो बहुत ही important है. ना जाने कितनी बार during the lectures, during the revision I have mentioned that इसे बिल्कुल भी आप
नेग्लेक्ट ना करें। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखें क्या है, 1 2 3 4 5 है ना। सो इट इज 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल और उस पर पहले ग्रिग्नार्ड का यूज और फिर वापस ग्रिग्नार्ड का यूज। ये है रिएक्शन। ये देखिए 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, इस पर जब आप ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड डालना है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है, इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फॉर्मेशन, राइट। साइनाइड पर सिर्फ 1 मोल ही ग्रिग्नार्ड ऐड होगा, उसके बाद एडिशन नहीं होगा। सो 1 मोल ग्रिग्नार्ड ने ऐड किया और ये देखिए ये कीटोन बन गया, राइट। ये कीटोन जब बना, अब इस कीटोन पर हम 2nd मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने पर यू विल गेट दिस पर्टिकुलर अल्कोहल। कीटोन पर ग्रिग्नार्ड ऐड होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनती है। साइनाइड से कीटोन, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। सो P जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है और उसमें एक कायरल कार्बन कंटिन्यू हो रहा है, राइट। जो यहाँ पर भी कायरल ही था और यहाँ पर भी कायरल है, तो P has 1 कायरल कार्बन। लेट्स गो टू द सेकेंड रिएक्शन। बेंजीन पर CH3COCl के साथ, बेंजीन पर अगर CH3COCl के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, बहुत ही फेमस रिएक्शन, क्या नाम है इसका? इसका नाम है फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ये फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड से इस पे बनेगा ये एसिटोफिनोन, राइट। ये बना है एसिटोफिनोन और फिर से कीटोन पर ग्रिग्नार्ड, सेम कॉन्सेप्ट। देखो वही कॉन्सेप्ट घुमा घुमा कर क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस जाकर ही अच्छा पेपर बन रहा है, नहीं। सो नाउ दिस ग्रिग्नार्ड इज अटैकिंग ऑन दिस कीटोन and you are again having a 3 degree alcohol, though pH is CH3, but there is no chiral carbon in this Q, right? इस Q में कोई chiral carbon नहीं है। बाकी yes, it is also a formation of 3 degree alcohol. Next we move to reaction number third. थर्ड क्या दी है देखें, यहाँ दिया है एसिड क्लोराइड और ये हाफ मोल ऑफ PHCH2CD दिया है। अब ये हाफ मोल देने का क्या पर्पस हो सकता है? देखो ये जो एसिड क्लोराइड है उस पर जब R2CD अटैक करता है तो रिएक्शन सिर्फ कीटोन तक ही जाएगी, राइट। हाफ देने का पर्पस ये है क्योंकि 1 मोल ऑफ R2CD हैज 2 अल्काइल ग्रुप्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द एसिड क्लोराइड। तो जो मोल्स ऑफ एसिड 2 मोल्स ऑफ एसिड क्लोराइड हैं वो 1 मोल ऑफ R2CD से रिएक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई दे हैव टेकन कि डू नॉट टेक इन एक्सेस। ये भी नहीं सोचा कि आप आगे रिएक्शन जाने ना जाने, ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है। आपसे स्टोइचियोमेट्री से ही काम निकलवा लिया और फिर PHMgBr का अटैक। तो ये देखिए ये कीटोन बना है, दोबारा PHMgBr का अटैक और फिर वाटर, वही रिएक्शन अगेन, कीटोन पर PHMgBr एंड यू हैव अ न्यू 3 डिग्री अल्कोहल। Now this time you can see this red marked carbon is chiral. PH, PHCH2, CH3CH2, this R formed is having a chiral center. Alright, let's move to the last part of this PHCH2CHO, aldehyde per Grignard. If aldehyde per Grignard, you will have a 2 degree alcohol. क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये देखिए ये अल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड ऐड हो रहा है। अल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड ऐड होने से यहाँ हमारे पास बना है ये 2 डिग्री अल्कोहल। नाउ दिस इज रिएक्टेड विद CrO3 एंड डाइल्यूट H2SO4। इसको डाइल्यूट H2SO4 में जब ट्रीट कराया तो एसिडिक कंडीशन में क्रोमियम +3, CrO3 इज क्रोमिक एसिड अनहाइड्रेट। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन करेगा। यहाँ ये +6 है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ जाएगा? कीटोन में। Now this ketone is made to react with HCN, ये बना साइनोहाइड्रिन। अब इस स्टेज तक तो कायरल चीज बनी है, कायरल कंपाउंड बना है, बट अब इसके आगे रिएक्शन कराई है डाइल्यूट H2SO4 की। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन। ये जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ यहाँ 2 चीज़ें एक साथ होंगी, ऊपर साइनो जो है वो COH भी बनेगा और ये जो OH वाला है डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन दैट you will get a combination of that CN to going COH and you will also get
द डिहाइड्रेशन ऑफ दिस OH, सो आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिलेगी और आपको ये अनसैचुरेटेड एसिड S यहाँ बनेगा। अब S भी आपके पास बन गया है, सारे PQRS आपके पास आ चुके हैं। ऑप्शंस की तरफ आते हैं। बोथ P and Q have asymmetric carbon. Let us take these options that side so that हम देख पाएं कि हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, so these are our options. I'll just put it here. So both P and Q have asymmetric carbon. P has asymmetric carbon, but Q do not have any asymmetric carbon. So A option is wrong. B, both Q and R have asymmetric carbon. जब Q है ही नहीं, हम पहले ही डिनाई कर चुके हैं, तो B भी आंसर नहीं हो सकता. It does not have any asymmetric carbon. C ऑप्शन पे आते हैं. Both P and R have asymmetric. P तो yes have, R भी हमने मार्क कर रखा है, तो हमें जो आंसर इस क्वेश्चन का मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का C मिला है, राइट? C आया है हमारा एक आंसर. D ऑप्शन भी पढ़ लेती हूँ. P has asymmetric carbon. P has asymmetric carbon. S does not have, S, where is S? S is here. Does not have any asymmetric carbon. Well, that is true, because अगर आपने इस स्टेज पर डिहाइड्रेशन नहीं लिया होता, हमें अपने थ्योरी थ्रू प्रॉब्लम में या फिर PYQ डिस्कशन में, इवन इन मेंस के PYQ डिस्कशन जो अपन ने चैनल पे अपलोड किए हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट बार बार बोली हूँ कि ये अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स जब बनते हैं और इन पर H2SO4 दे, तो आप इसे हाइड्रोलाइज भी कराएंगे और डिहाइड्रेट भी कराएंगे. मेंस में भी था लास्ट ईयर, ठीक? ये एडवांस में 2 बार आ चुका कॉन्सेप्ट है और ये फिर से आ गया है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक? तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, इस पे ये COH गया. अगर आपने यहाँ सिर्फ हाइड्रोलिसिस ले लिया होता, मान लीजिए ले लिया होता, अज्यूम, देन आप ये आंसर S डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक, ये वाली चीज़ नहीं एक्सेप्ट करते और तब आप D टिक नहीं करेंगे. बट करंटली व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दिस विल हैव बोथ C and D as answer. So here the answer is C and D. Okay, the answer is C and D. Both P and R have asymmetric carbon. P has asymmetric carbon. S does not have any asymmetric carbon. Okay, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन क्या है देखें. Consider the following reaction scheme and choose the correct options for the major products Q, R and S. Okay, तो शुरुआत जो की गई है हमारे से क्वेश्चन की, इट इज़ फ्रॉम स्टायरीन. ओके, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है हमारे लिए? स्टायरीन से शुरू हो रहा है. तो अब स्टायरीन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. आई थिंक आप सभी को पता होगा, स्टायरीन होता है PHCH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज स्टायरीन. स्टायरीन पे सबसे पहले जो इन्होंने दिया है कि पहले B2H6 फॉलोड बाय B2H6 followed by NaOH H2O2 वाटर. ये कौन सी रिएक्शन है? ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. इसका यूज़ किया जा रहा है. क्या खास होता है इसमें? इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा. सो ये चीज़ बनना चाहिए. दिस इज आवर P, राइट? ये हमारा P है. अब इस P से 2 रास्ते हैं, एक P से एक Q बन रहा है, एक P से S की तरफ रिएक्शन जा रहा है. चलिए, तो पहले हम Q के बनने की बात करते हैं. अब कहा जा रहा है कि इसको CrO3H2SO4 मतलब ऑक्सीडेशन कराया जाएगा और ऑक्सीडेशन इसका COOH एसिड में होगा. नाउ क्लोरीन एंड रेड फॉस्फोरस, अगेन वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, फॉलोड बाय वाटर, भी उसी का हिस्सा होना ही है. और ये कौन सी रिएक्शन है? सभी को याद आनी चाहिए जिन्होंने दी है एग्जाम, जो तैयारी कर रहे हैं. HVZ, Hell-Volhard-Zelensky reaction. It is a reaction of alpha halogenation. PHCHCl COOH. This is your Q. ये आपका Q बनने वाला है. अगर ये आपका Q बनने वाला है तो ये डिसाइड करते ही C और D, ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाने चाहिए, क्योंकि ये
नहीं है, क्यू मैच नहीं कर रहा है। वापस से ये नीचे वाली सीक्वेंस, एक और सीक्वेंस दे रखी है फॉर आर एंड एस, उसके लिए बढ़ते हैं। उसके लिए हमें फिर से पी पर जाना होगा। PHCH2CH2OH, ये जो P है इसकी अब रिएक्शन पहले कह रहे हैं कि SOCl2 से कराइए, ये बन जाएगा PHCH2CH2Cl। फिर कराइए NaCN, तो PHCH2CH2CN आने वाला है, NC नहीं है ये। ठीक, इस तरह से लिखने से भूल कर भी ना जाने कि ये NC है, ये CN है। नाउ इसका हाइड्रोलिसिस H3O+ और हीट दे रखा है। ठीक, अगर इसको हाइड्रोलिसिस और हीट दिया है, अब सिर्फ हाइड्रोलिसिस देते तो हम अमाइड पर रोक लेते, पर अगर हीट दे दिया है तो हम इसे PH2CH2COOH पर लेकर जाएंगे और इसका आंसर ये R बन गया, राइट। तो हमें PHCH2CH2COH ऐसा देखते ही आंसर B तो आ गया है। लेकिन आगे क्या है, ये कॉन्स्टेंट H2SO4 में कौन सी रिएक्शन कराई गई है, आइए वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कराया गया है कि ये जो एसिड है उस पर H2SO4, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड से H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, उसने इस H2SO4 ने प्रोटोनेट किया इस एसिड को, यहाँ आएगा प्लस एंड देन देयर इज रिंग क्लोजर। ये बेसिकली फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन ही कराया गया है। ठीक, दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये जेई के लिए वैसे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ी होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से यहाँ 5 मेंबर रिंग बनकर ये रिंग क्लोज हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, और ये इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी। दिस इज़ फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। In the scheme given below, X and Y respectively are. So metal halide is reacting with aqueous NaOH to form white precipitate P plus filtrate Q. P then react with PbO2 in excess in presence of sulfuric acid to form X. X is a colored species in solution. Q will further react with concentrated H2SO4 and MnOOH whole twice. Basically MnOOH whole twice is MnO2 plus H2O, and MnO2 is an oxidizing agent. So here Q is converted into Y. Y gives blue coloration with Ki starch paper. तो सबसे पहली तो इसमें अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो ज़्यादा आसान होगा। y के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि y gives blue coloration with Ki. So from the options I can say that y can be Cl2 and y can be Br2, because this is layer test कि जो लो एटॉमिक नंबर वाले हेलोजेंस हैं वो हायर एटॉमिक नंबर वाले हेलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करेंगे। सो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज I-2I2 and bromine can oxidize I-2I2. both possibilities are there. तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में कौन सा सही है। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द मेटल हैलाइड। अब मेटल हैलाइड यहाँ पे केवल दो तरह के हैं, या तो मैग्नीज का मेटल हैलाइड होगा या क्रोमियम का मेटल हैलाइड होगा। सो सपोज इफ आई एम टेकिंग दैट दिस मेटल हैलाइड इज ऑफ क्रोमियम, CrCl3 लेता हूँ मैं, और इसकी NaOH से रिएक्शन होगी, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज अ कलर्ड कंपाउंड। और दूसरी बात यह है कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, NaOH दे रखा है, इट विल फर्दर रिएक्ट विथ NaOH एंड डिसॉल्व इन इट, सो इट कांट मेक अ वाइट प्रेसिपिटेट विथ NaOH. The second option possible will be MnCl2. In case of MnCl2, manganese is present in +5 oxidation state. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो कंपाउंड होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम में हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, वो कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं इन जनरल। तो इसको मानते हुए MnCl2
से जो हाइड्रोक्साइड बनेगा मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, इट विल बी कलरलेस और वी कैन से दैट इट हैज अ वाइट precipitate. So when MnCl2 will react with NaOH, it will form MnOH twice, and here it will form Cl minus, right? So NaCl will form. So it is a non-redox reaction. पहला ऑप्शन हमें पता चल गया कि क्रोमियम तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड विल नॉट फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट, इट विल फॉर्म कलर्ड एंड इट विल फर्दर रिएक्ट विथ NaOH. तो इससे हम ए ऑप्शन को देखें तो ब्रोमीन कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है व्हेन इट इज रिएक्टिंग विथ PbO2, this PbO2 is an oxidizing agent. Lead is present in +4 oxidation state, so it will go to +2. So manganese already +2 oxidation state में है, it will go to higher oxidation state. From here we can say D option is not possible. D option में manganese +2 oxidation state में ही है. The other thing is that the medium is acidic. We know that हमने ये redox में पढ़ा है कि KMnO4 in highly basic medium is converted into K2MnO4. So K2MnO4 can exist in highly basic medium, but in acidic medium K2MnO4 will not exist, right? So that's why among these two options we'll go for C option, because here MnO4 minus can exist in aqueous medium, in acidic medium, and it is a colored compound because of charge transfer from ligand to metal. MnO4 minus is colored. So it is matching with this X, a color species in solution. अब हम इसको रिलेट कर लेते हैं कि यहाँ से जो HMnO4 मिला है और ये जो फिल्टरेट है, फिल्टरेट NaCl इज सॉल्युबल, सो ये जो प्रोडक्ट है फर्स्ट रिएक्शन का, इसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे, तो फिल्टर पेपर पे जो है वो MnOH होल ट्वाइस का वाइट प्रेसिपिटेट रह जाएगा. फिल्टरेट विल कंटेन NaCl. क्लोराइड आयन इज देयर. When we treat this chloride ion with MnO2 or MnOOH whole twice, because manganese is present in +4 oxidation state, manganese का reduction हो गया. manganese in acidic medium is going from +4 to +2 and chloride ion is oxidized to Cl2, और ये Cl2 अब ये reaction देगा. Cl2 will react with Ki to form KCl and I2 will combine with starch to form blue color complex. So the question is little bit difficult, but the answer for question number 4 will be C. We can eliminate A with the help of color, and from there Br2 will be eliminated, and we can eliminate B with the help of K2MnO4 is stable in basic medium, it is not stable in solution form in acidic medium. And from D we can say that because D can be excluded here, manganese already +2 में है और PbO2 is oxidizing agent and it is reacting, so definitely manganese higher oxidation state में जाएगा. From there we can eliminate the D option. So answer for question number 4 will be C. Question number 5. This question is related to electrochemistry and I was teaching this question. It is in my class notes, so from past 2-3 years we are doing this question, and there are many of the teachers are doing the same. So just I am telling that this is from my class notes. So plotting 1 upon lambda m against C into lambda m for aqueous solution of monobasic acid HX resulted in a straight line with y axis intercept of P and the slope of S. The ratio of P upon S is, so lambda m is molar conductivity, lambda m naught is limiting molar conductivity, C is molar concentration, K is dissociation constant of HX. So HX is a weak monobasic acid. We know that the dissociation constant Ka is equal to C naught alpha square 1 minus alpha. For weak acid we know that by using unitary method we can write that when the molar conductivity is equal to infinite, when the molar conductivity is with respect to concentration 0, that is limiting molar conductivity, infinite dilute solution में the degree of dissociation of weak electrolyte is equal to 1. तो अगर lambda
मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जब यूनिटी होगी तो ये वैल्यू होगी लैम्डा 1/λm0, and if the molar conductivity of the solution is lambda m corresponding to the given concentration, from there we can write that the degree of dissociation can be written as lambda m/λ m0. तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड हमें मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज λm/λm0. We put this value in this equation C naught alpha in place of alpha lambda m/λ m naught whole square upon 1 minus lambda m/λ m naught. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें y एक्सिस पे 1/λm लेना है और x एक्सिस पे c into lambda m लेना है. So from here I can write this value is c into lambda m into lambda m, और यहाँ इसको LCM लेते हैं तो this is equal to ये जो लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर है इसको नीचे ले जाके ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं. सो दिस विल बिकम लैम्डा एम नॉट होल स्क्वायर माइनस एक लैम्डा एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा एम इंटू लैम्डा एम नॉट. अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और के को राइट हैंड साइड में लाते हैं, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट लैम्डा एम नॉट होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम, यहाँ से ये लैम्डा एम कैंसिल आउट हो गया, माइनस लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा एम अपॉन के ए. वाई एक्सिस पे हमें केवल 1/λm चाहिए तो लैम्डा एम नॉट से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देते हैं. फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दैट 1/λm minus 1/λm naught is equal to c into lambda m k upon lambda m naught square. And on simplification we are getting that this is y, this is intercept c, and lambda m into c will be x and 1/k lambda m naught square की वैल्यू जो है वो स्लोप के बराबर है. So from here we can write that the value of p, the intercept on y axis is 1/λm and the value of slope is 1/k into lambda m naught square. If I divide p by s, then we are getting that p by s is equal to lambda m naught into ka. So from here we are getting that a is the answer for question number 5. Question number 5 का answer a होगा, and this concept is given in book, and from there from past 2-3 years I was teaching this concept. So if you know about the mathematical thing, you can manage and find out the answer.